ગુજરાતના નાથ, દેશના નાથ અને હવે વિશ્વ નેતા નરેન્દ્ર મોદી આવતીકાલ તારીખ 19મીએ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, જૂનાગઢ અને રાજકોટની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. નરેન્દ્ર મોદીની સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતની મુલાકાતોના સંભારણા અબ તકે વિશેષ રીતે સાચવ્યા છે અને એના ઉપર તૈયાર કર્યો છે એક કાર્યક્રમ સુસ્વાગતમ મોદીજી. આવો નિહાળીએ. સુસ્વાગતમ મોદીજી. નરેન્દ્ર મોદી વૈશ્વિક આકાશમાં ચમકતો એક સિતારો, વડનગરની ગલીઓમાં રમતો એક બાળક, પિતાને ચાની નાનકડી દુકાને મદદરૂપ થઈ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના કાર્યકર ને પછી પ્રચારક બને છે. વર્ષો સુધી રાષ્ટ્રભક્તિ કરીને અચાનક જ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પદે બિરાજવાનું સૌભાગ્ય એમને પ્રાપ્ત થાય છે ને લગભગ 1.5 દાયકા સુધી એ પદ શોભાવે છે. મૂળ ઉત્તર ગુજરાતના નરેન્દ્ર મોદીને સૌરાષ્ટ્ર સાથે પહેલેથી જ નાતો અને લગાવ રહ્યા છે. સંઘના પ્રચારક તરીકે રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં તેઓ ખૂબ ફર્યા ને પોતાના રાજકીય જીવનની પહેલી ચૂંટણી રાજકોટથી લડીને ગુજરાતના નાથ બન્યા. નરેન્દ્ર મોદી માત્ર ગુજરાતના જ ન રહેતા દેશના નેતા બન્યા 2014માં. હા, લોકસભાની ચૂંટણી વડોદરા અને વારાણસીથી લડ્યા, બંને જગ્યાએ જીત્યા ને સાંસદ બની ગૃહમાં વડાપ્રધાન પદે આરૂઢ થયા. એ પછી પાછું વાળીને જોયું જ નથી. દેશવાસીઓએ તો તેમને હૃદયમાં સ્થાન આપ્યું જ છે. વિદેશ સ્થિત ભારતીયો અને હવે વિશ્વભરના લોકો અને નેતાઓએ મોદીને વિશ્વ નેતા તરીકે સ્વીકારી લીધા છે. નરેન્દ્ર મોદીનો મહિમા ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવશે એ વાત નક્કી છે, કેમ કે હવે આખું વિશ્વ માને છે કે મોદી હૈ તો મુમકિન હૈ. નરેન્દ્ર મોદી આવતીકાલ તારીખ 19 ઓક્ટોબરે ફરી એક વખત ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. દિલ્હીથી સવારે ઉડીને અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવશે. ત્યાંથી ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે સવારે 9:45 વાગ્યે પહોંચી ડિફેન્સ એક્સપોની મુલાકાત લેશે. બપોરે અમદાવાદથી જૂનાગઢ પહોંચી કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં જાહેર સભાને સંબોધી જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના રૂપિયા 2400 કરોડના વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ કરશે. બપોર બાદ 5:30 વાગ્યે રાજકોટ આવી એરપોર્ટથી રેસકોર્સ સુધી ભવ્ય રોડ શો કરી રેસકોર્સમાં જાહેર સભા સંબોધશે. રાજકોટ અને મોરબી જિલ્લાના 7,710 કરોડ રૂપિયાના વિકાસ કામોનું રાજકોટથી લોકાર્પણ કરશે ને એ પછી નેશનલ અર્બન હાઉસિંગ કોન્ક્લેવનું ઉદ્ઘાટન કરશે. નરેન્દ્ર મોદી અગાઉ ઘણીવાર રાજકોટ આવી ચૂક્યા છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે અને વડાપ્રધાન તરીકે તેમણે રાજકોટની અનેકવાર મુલાકાત લીધી છે. ભૂતકાળ ઉપર નજર કરીએ તો તેમણે નર્મદાનું જળ આજી ડેમમાં ઠાલવવાની સૌની યોજનાના લોકાર્પણ વખતે રાજકોટની મુલાકાત લીધી હતી અને જાજરમાન રોડ શો કર્યો હતો. તેમણે આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલમાં તૈયાર થયેલું महात्मा गांधी म्यूजियम पण निहाळ्યું હતું. जो महात्मा गांधी जैसे सत्य के रास्ते पर आगे चले थे, इस वीडियो गेम्स के माध्यम से भी बच्चे जो गेम खेलेंगे तो रास्ते में कई सारी दुविधाएं आएंगी और अगर आप सही सवाल का जवाब देंगे तो दुविधा आपके सामने से हट जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वर्चुअल रियलिटी गेम को देखते हुए और एक जो बच्चा है, जो वॉलंटियर्स है, वो यहाँ पे गेम खेल रहा है. कुछ ही देर में देखेंगे कि किस तरह से जो आपके जीवन में बाधा अगर आ रही है और अगर आप पाथ ऑफ ट्रुथ पे यानी सच के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तो आपके जीवन में जरूर बाधाएं आएंगी. लेकिन असली शूरवीर वही होता है, असली योद्धा वही होता है, असली महापुरुष वही होता है जो इन तमाम बाधाओं को पार करते हुए वो आगे बढ़े. तो इस वीडियो गेम का फॉर्मेट दिया गया है क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि अभी तक पुराने माध्यम से अगर बच्चों को बताने की कोशिश की जाए कि आपको झूठ नहीं बोलना है, सत्य की राह पर आगे चलना है, तो शायद उन्हें समझना है. ये वो जनरेशन है जो कि कार्टून को ज्यादा समझती है, जो बच्चे होते हैं कार्टून को ज्यादा समझते हैं और डिजिटल माध्यम से ही इस कार्टून को बताया गया और कार्टून के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गेमिंग साइट के माध्यम से समझ रहे हैं कि किस तरह से बच्चे भी एक तरह से उनमें बचपन से ही सत्य की जो बात है उनको रखी जा सकती है. गांधी जी के 3 बंदर भी आप यहाँ देख रहे हैं जो कि काफी प्रसिद्ध है दुनिया भर के अंदर, जो कहता है बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कमरे में गए हैं वो है वो कमरा जिसमें टॉक विद बापू, यानी कि आप बापू के साथ में कैसे वार्तालाप कर सकते हैं उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं.
क्योंकि वर्चुअली यहाँ पे गांधी जी आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो जब बच्चे यहाँ पे आएंगे, जैसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद टॉक विद बापू का जो कमरा देखा, और इसमें बापू जो काम किया करते थे, तो जिसके जहन में कोई भी सवाल हो, दुविधा हो, तो वर्चुअल माध्यम से गांधी जी की जो जवाबों को पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आप जब भी सवाल करेंगे महात्मा गांधी से, तो वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से गांधी जी आपके सवालों के तमाम जवाब देते हुए आपको दिखाई देंगे। और अब अंतिम पड़ाव के अंदर ये पूरा म्यूजियम का जो सफर है वो आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आखिरी कमरे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये कमरा बड़ा ही खास है आनंद और रुकमा, खास इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी खुद इसी कमरे नंबर 38 के अंदर खुद पढ़ा करते थे। ये वही क्लास है, आपने बचपन में कहानी जरूर सुनी होगी, जब महात्मा गांधी एक बार अपनी क्लास तक एग्जाम दे रहे थे, तो वहां पे लॉर्ड जाइल्स इंस्पेक्शन पर आए थे, लेकिन महात्मा गांधी केटल की स्पेलिंग को गलत लिख रहे थे। केटल की स्पेलिंग दरअसल होती है KETTLE, लेकिन महात्मा गांधी CATTLE स्पेलिंग को लिख रहे थे। तो ये वही क्लासरूम है, जो इंस्टेंस जो बताया गया है कि ये उसी क्लास की बात बताई जाती है कि उनके जो शिक्षक ने उन्हें कहा, उन्हीं मार करके कहा कि आप अपने बगल में से अपने बच्चे जो सहपाठी है उनके हाथ से आप इस सही स्पेलिंग को कॉपी करके लिख दीजिए। लेकिन महात्मा गांधी कभी भी इस बात को नहीं माने, उन्होंने कभी भी चोरी नहीं की जो कि इनके सिद्धांतों में कहा गया था। या इस कमरे को अगर आप देखें तो ये वही दर्शाते हैं कि किस तरह से महात्मा गांधी का जो पुरुषार्थ रहा था, किस तरह से जो अच्छी जो हैबिट्स होती है, अच्छी आदतें होती है, उनका निर्माण इसी स्कूल के दौरान हुआ था। तभी कहते हैं कि फॉर्मेटिव एज जो होती है, यानी कि एक बच्चे का जब जीवन बन रहा होता है, उस समय पर उन्होंने 7 साल का समय लगभग इसी एल्फ्रेड हाई स्कूल में बिताया है। और वही इस बात को दर्शाता है कि ये वही क्लास है, ये वही क्लासरूम है जब महात्मा गांधी पढ़ा करते थे। अगर आप इन क्लासरूम को बखूबी अगर बारीकी से पढ़े तो ये महात्मा गांधी के बर्थ सर्टिफिकेट भी मौजूद है, या महात्मा गांधी की मार्कशीट भी मौजूद है, या महात्मा गांधी की अटेंडेंस शीट जो हुआ करती थी, तो उस समय पर कोई बेंच नहीं हुआ करती थी, अब जमीन पर बैठ करके पढ़ा करते थे। तो ये वही खूबसूरती के साथ तमाम चीजों को बताया गया है। और आनंद और रुकमा और हम अपने तमाम दर्शकों को कहेंगे कि आप टेलीविजन सेट को कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब लगभग 10 मिनट की वर्चुअल रियलिटी 20 फुट के ऊपर जो तमाम जो महात्मा गांधी की जो मूवी है उसे प्ले आउट किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देखेंगे और समझेंगे कि जो वर्चुअल रियलिटी, आपने इससे पहले अक्षरधाम के अंदर जरूर देखा होगा कि दीवार पे किस तरह से संदेश को दिया जाता है, और अब उसी माध्यम से एक 10 मिनट की मूवी आप जब भी यहाँ पे आएंगे, जब भी म्यूजियम का दौरा करेंगे, तो आपको शाम के वक्त इस वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से इस मूवी को दिखाया जाएगा। तो अब अंतिम पड़ाव में म्यूजियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग जो कमरे थे जो देखते थे वो देख लिए, जिसमें महात्मा गांधी की तमाम हाई पॉइंट है लाइफ के, किस तरह से उनकी लाइफ ने एक तरह से शेप लिया था इस स्कूल के अंदर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस प्रांगण में पहुंच चुके हैं जहां पर बैठ करके अब से कुछ ही देर के अंदर आनंद रुकमा वो एक भव्य फिल्म को, जो कि बंटी नाम के बच्चे की है, आप इस मूवी में ये देखेंगे कि कैसे बंटी कॉपी कर रहा है, चोरी करने की कोशिश कर रहा है एग्जाम के अंदर, लेकिन महात्मा गांधी उन्हें देखिए किस तरह से सही रास्ते पर लेकर के आते हैं और सत्य और भय मुक्त कर देते हैं, एक मूवी के जरिए यहाँ पे बताया गया है। आनंद और रुकमा। बिल्कुल अरुण, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि किस तरीके से एक युग को, गांधी युग को समेटने की कोशिश की गई है इस पूरे म्यूजियम के माध्यम से, अपने आप में एक प्रेरणा स्थल के तौर पे देखा जा सकता है। और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो गांधी के विचारों के तौर पे रही हैं उसको समाहित करके रखा गया, और संभवतः जिस मूवी का जिक्र कर रहे हैं तकनीक के समायोजन से उन विचारों को पुनर्जीवित करके आज की पीढ़ी के सामने रखना, ये भी अपने आप में स्वप्नदृष्टा जैसे व्यक्ति ही कर सकते हैं और संभव करके दिखा सकते हैं। રાજકોટ માં એમ્સનો શિલાન્યાસ પણ નરેન્દ્ર મોદીએ કર્યો એ વાત બધા જાણે છે। एम्स राजकोट के निर्माण स्थल पर मौजूद हम सभी के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर आग्रह है कि वे रिमोट का बटन दबाकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट का शिलान्यास करें। क्या है जीवन में हेल्थ और प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व? ये बात हमें 2020 से अधिक कौन समझा सकता है, लेकिन धन्य है ये धरा गुजरात की।
जहां दूरदर्शी नेतृत्व ने बहुत पहले ही मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल पॉलिसी की कमियों को पूरा किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ अश्योरेंस की नीति अपनाई। गरीब के निशुल्क इलाज की नई रीति बनाई। स्वास्थ्य को गुजरात की तरक्की की सीढ़ी बनाया। इसीलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ आज गुजरात देश के मेडिकल हब के रूप में उभरा है। न केवल आसपास के राज्यों से बल्कि पड़ोसी देशों के नागरिकों के लिए भी आयुष्मान बना है गुजरात। ऑपरेशन कितना भी जटिल क्यों न हो, गुजरात के पास काबिल डॉक्टर्स की सेना तैयार है, 30 मेडिकल कॉलेजों के साथ, जिसका दिन ब दिन विस्तार भी हो रहा है। मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी और उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री नितिन भाई पटेल के नेतृत्व में कोविड-19 के समय में भी गुजरात ने अपने स्वभाव के अनुसार साहस और क्षमता का परिचय दिया। 735 कोविड अस्पताल, 70,000 बेड्स, 1,700 से अधिक धन्वंतरी रथ, 20 लाख से अधिक लोगों के घर घर टेस्टिंग ड्राइव के साथ गुजरात ने कोरोना पर न केवल काबू पाया बल्कि गुजरात के हेल्थ मैनेजमेंट की सराहना एम्स, नीति आयोग और WHO ने भी की। मेडिकल के साथ फार्मा और वैक्सीन डेवलपमेंट क्षेत्र का भी विकास हुआ है। यही वजह है जो आज कोरोना वैक्सीन के ट्रायल रन के लिए भी गुजरात का चयन हुआ है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष गुजरात में 5 नए मेडिकल कॉलेजों में 500 MBBS सीटों की बढ़ोतरी होने जा रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुजरात की मेडिकल यश गाथा में आज एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। राजकोट एम्स। राजकोट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर खंडेरी गांव में स्थित होगा और इसका निर्माण 201 एकड़ में फैली विशाल भूमि पर 1,195 करोड़ रुपयों की लागत से किया जाएगा। राजकोट एम्स को 4 लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा, जिसकी राजकोट एयरपोर्ट से दूरी होगी महज 11 किलोमीटर। चलिए अब डालते हैं राजकोट एम्स पर एक नजर। 750 बेड, MBBS की 125 सीटें, 75 नर्सिंग सीटें और लाइब्रेरी, छात्रों के लिए हॉस्टल ब्लॉक्स, डॉक्टर्स तथा नर्सेस के लिए बनेंगे रेजिडेंस क्वार्टर्स और मरीज के साथ आए व्यक्ति को रहने की सुविधा के लिए भी 250 लोगों की क्षमता की धर्मशाला। इस संस्था में पहली बैच की पढ़ाई दिसंबर के तीसरे सप्ताह से शुरू की जा चुकी है। आरोग्य क्षेत्र में विकास के प्रति प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है आयुष्मान भारत जैसी ऐतिहासिक योजनाएं। उनके ही लक्ष्य को जमीन पर उतार रहा है गुजरात। एम्स राजकोट का शिलान्यास करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, साल 2020 को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना इस साल की चुनौतियों को भी दर्शाता है और नए साल की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है। ये साल पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य के रूप में अभूतपूर्व चुनौतियों का साल रहा है। इस साल ने दिखाया है कि स्वास्थ्य ही संपदा है। ये कथा हमें हमारे पूर्वजों ने क्यों सिखाई है, ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है, ये 2020 ने हमें भली भांति सिखा दिया। स्वास्थ्य पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है और सिर्फ परिवार नहीं, पूरा सामाजिक दायरा उसकी लपेट में आ जाता है। और इसलिए साल का यह अंतिम दिन भारत के उन लोग लाखों डॉक्टर्स,
हेल्थ वॉरियर्स, सफाई कर्मियों, दवा दुकानों में काम करने वाले और दूसरे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को याद करने का है, जो मानवता की रक्षा के लिए लगातार अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया है, मैं आज उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज देश उन साथियों को, उन वैज्ञानिकों को, उन कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा है, जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में दिन रात जुटे रहे हैं। आज का दिन उन सभी साथियों की सराहना का है, जिन्होंने इस मुश्किल दौर में गरीब तक भोजन और दूसरी सुविधाएं पहुंचाने में पूरे समर्पण के साथ काम किया। इतना लंबा समय, इतनी बड़ी आपदा, लेकिन ये समाज की सामूहिक संगठित ताकत, समाज का सेवा भाव, समाज की संवेदनशीलता, उसी का नतीजा है कि देशवासियों ने किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूखा सोने नहीं दिया। ये सब नमन के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं। साथियों, मुश्किल भरे इस साल ने दिखाया है कि भारत जब एकजुट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना वो कितनी प्रभावी तरीके से कर सकता है। भारत ने एकजुटता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए, उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। जिस देश में 130 करोड़ से ज्यादा लोग हों, घनी आबादी हो, वहां करीब करीब 1 करोड़ लोग इस बीमारी से लड़कर जीत चुके हैं। कोरोना से पीड़ित साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है। वहीं अब संक्रमण के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। भाइयों और बहनों, साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा।
साथियों, गुजरात में भी संक्रमण को रोकने के लिए और अब टीकाकरण के लिए तैयारियों को लेकर प्रशंसनीय काम हुआ है। बीते 2 दशकों में जिस प्रकार का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में तैयार हुआ है, वो एक बड़ी वजह है कि गुजरात कोरोना चुनौती से बेहतर तरीके से निपट पा रहा है। एम्स राजकोट गुजरात के हेल्थ नेटवर्क को और सशक्त करेगा, मजबूत करेगा। अब गंभीर से गंभीर बीमारियों के लिए राजकोट में ही आधुनिक सुविधा उपलब्ध हो रही है। इलाज और शिक्षा के अलावा इससे रोजगार के भी अनेक अवसर तैयार होंगे। હમણાંની જ વાત કરીએ તો સપ્તાહ પૂર્વે જ જામનગરમાં રોડ શો કર્યો અને બીજા જ દિવસે જામકંડોરણામાં 1.5 લાખની જનમેદનીને સંબોધી હતી। આજે જ્યારે જામનગરની ધરતી પર આવ્યો છું ત્યારે કે રસ્તામાં જે ભવ્ય સ્વાગત અને આશીર્વાદ આપ્યા ક્યારે ન ભૂલાય એવો ઉમળકો ઉમંગ અને વધારે તો મારા મનને સંતોષે વાતનો તો ખૂબ મોટા પાયા પર માતાઓની હાજરી હતી, બહેનોની હાજરી હતી અને વડીલ બુजुर्ग માતાઓ ઓવાણા લે, આશીર્વાદ આપે, એનાથી મોટું કાશીની ધરતી પર મને પુણ્ય કયું હોય ભાઈ। નિરંતર સેવા, આ એટલી સેવા એ કરવા માટેનું જે મારું પ્રાણ છે ને એ પણ મજબૂત થાય। चाहे वो गुजरात की प्रगति हो चाहे देश की प्रगति हो, भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। एक राज्यમાં જેટલા ઉદ્યોગો હોય એના કરતા વધારે ઉદ્યોગો એકલા આપણા ભરૂચ જિલ્લામાં છે। આજે આણંદની ધરતી પર આવ્યો છું। ગુજરાત અને ભાજપ આ બંનેનો અતૂટ નાતો છે, અતૂટ નાતો। અને આ નાતો, આ રિશ્તા ये मात्र राजकारणना नहीं, आटापाटाना नहीं, ये तो दिलनो प्रेम है। पहला दिलनो प्रेम। गुजरात भाजप एटले सेवा, गुजरात भाजप एटले माताओं बहनों महिलाओं की सुरक्षा, गुजरात भाजप एटले शांति, गुजरात भाजप एटले समाजनी तोड़वा वाली ताकतों पर जीवलेण प्रहार करवानी शक्ति। गई काले मां मोढेश्वरी ना दर्शन कर्या।
અને આજે સમાજ દેવતાના દર્શન કરી રહ્યા છે. गुजरात के लोकप्रिय मृदु एवं मक्कम मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल 2019 के चुनाव में जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मार्जिन से विक्ट्री की, वैसे गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्रीमान CR पाटिल, गुजरात सरकार के मंत्रिपरिषद के सभी अन्य सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे हुए जामनगर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जामनगर वट पाड़ी दीधो. મને એરપોર્ટ થી અહીંયા આવવામાં મોડું એટલા માટે થયું ભાઈ કે રસ્તામાં જે ભવ્ય સ્વાગત અને આશીર્વાદ આપ્યા ક્યારેય ન ભૂલાય એવો ઉમળકો ઉમંગ અને વધારે તો મારા મનને સંતોષે વાતનો તો ખૂબ મોટા પાયા પર માતાઓની હાજરી હતી, બહેનોની હાજરી હતી અને વડીલ બુજુર્ગ માતાઓ ઓવાણા લે, આશીર્વાદ આપે, એનાથી મોટું કાશીની ધરતી પર મને પુણ્ય કયું હોય ભાઈ. અને છોટી કાશીના આશીર્વાદ અને મોટી કાશીનો MP. साथियों, भरूच से जामनगर तक गुजरात की समृद्धि को, गुजरात के विकास को विस्तार देने का ये अनुभव वाकई अद्भुत है. आज यहां 8 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. आप सभी को पानी, बिजली, कनेक्टिविटी से जुड़े इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई. आज वाल्मीकि समाज के लिए विशेष कम्युनिटी हॉल का भी लोकार्पण हुआ है. इससे हमारे इन भाई बहनों को विभिन्न सामाजिक आयोजनों में बहुत मदद मिलेगी. साथियों, आप सब ने અને હમણાં જ નવરાત્રી ગઈ છે અને 2 વર્ષના કોરોનાના કારણે બધું ઠંડુ પડી ગયું હતું અને આ વખતે તો મેં જોયું કે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે નવરાત્રીનો આનંદ હતો અને જામનગરે પણ ભવ્યાતિ ભવ્ય નવરાત્રી મનાવી અને આ નવરાત્રી પૂરી થઈ, દશેરા ગયા અને હવે દિવાળીની તૈયારીઓએ હાજરી દીધી. आपने याद से लगभग 2 दशक पहला आज समयगाळो હતો જ્યારે જામનગર, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ સહિત આખા ગુજરાતને ભૂકંપે રગદોળી નાખ્યું હતું. એમ લાગતું હતું ગુજરાત મોતની ચાદર ઓઢીને સૂતું છે.
અને દુઃખના દાડા એટલા ભયંકર હતા કે ભૂકંપ પછીના પહેલી નવરાત્રી, ભૂકંપ પછીની પહેલી દિવાળી ગુજરાતના કોઈ પણ ઘરે ન નવરાત્રી મનાવી હતી ન દિવાળી ઉજવી હતી. ભૂકંપની એ ત્રાસદીએ એટલી બધી નિરાશા ફેલાવી હતી કે લગભગ આપણે માની લીધું હતું, લોકોએ માનતા હતા કે હવે ગુજરાત બેઠું નહીં થાય. લેકિન આ તો ખમીરવંતી પ્રજા છે, ખમીરવંતી પ્રજા. અહીં તો ખમીરનો જ ભણેલા છે. એવી ખમીરવંતી ભરતરા જોત જોતામાં ઊભી થઈ ગઈ. આત્મવિશ્વાસ, સંકલ્પ શક્તિ નિરાશાને ખંખેરી નાખી અને ગુજરાત ઊભું થયું. એટલું જ નહીં, જોત જોતામાં ગુજરાત દોડવા માંડ્યું અને આજે દેશને ગતિ આપવાની તાકાત સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. એ ગાજલી લાલેર છે ને માતાજીની મેર છે. આ કંડોણાના આંગણે આજે લીલા લેર છે. કંડોણાના આંગણે આજે લીલા લેર છે. આજે ભાઈ ની મોજ છે. કંડોણાના આંગણે આજ લીલા લેર છે. આજ લીલા લેર છે ને મોદી સાહેબ ની મેર છે. કંડોણાના આંગણે આજ લીલા લેર છે. આજ લીલા લેર છે ને ભાજપ ને લેર છે. કંડોણાના આંગણે આજ લીલા લેર છે. આજે લીલા લેર છે. કંડોણાના આંગણે આજે લીલા લેર છે. આજે લીલા લેર છે ને લલિત ભાઈ ની મોજ છે. કંડોણાના આંગણે, કંડોણાના આંગણે, કંડોણાના આંગણે આજે લીલા લેર છે. ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હિત લેવી છે. ઢોલી તો ઢોલ રે વગાડ મારે હિત લેવી છે. એ હિત લેવી છે ને મારે ગરબે ઘૂમવું છે. એ હિત લેવી છે ને મારે ગરબે રમવું છે. ઢોલીડા ચાંદ ઢોલ રે વગાડ મારે હિત લેવી છે. આજ મોદી સાહેબ ના છોગલે મારે હિત લેવી છે. આજ રાદડિયા ના છોગલે મારે હિત લેવી છે.
हे द्वारिकानो हे द्वारिकानो द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ से एण मुन माया लगाड़े द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़े छे तमे मन माया लगाड़ी रे नाथ मारो राजा रण छोड़ से एण मन माया लगाड़ी रे पण भारत ना नाथ मारा मोदी जी सरकार छे एणे मन माया लगाड़ी रे माया लगाड़ी मार वाला मोदी मन माया लगाड़ी मार वाला राधड़िया ए मोदी मन माया लगाड़ी रा 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 भारत नो नाथ ये तो नरेंद्र भाई मोदी एणे सबने माया लगाड़ी रे द्वारिकानो हो द्वारिकानो ये द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण सोड़स रण मन माया लगाड़े रा 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 चाली पाड़ो तुम्हारा राम नी रे बीज ताली ना होय जो ए ताली 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 पाड़ो तुम्हारा राम नी रे बीज ताली ना होय जो पधारो देश नो मर्द वड़ा प्रधान पधारो ये बात ओ जाम कंडोड़ा मा वाला तमे आविया मोदी जी भले पधारा आहा ए जाम कंडोड़ा मा वाला तमे आविया मोदी जी भले पधारा ए मन हैया महरखन माय रे मोदी तमे भले पधारा महरखन माय रे मोदी तमे भले ये पधारा मन हैया महरखन माय रे मोदी तमे भले पधारा आओ महरखन माय रे मोदी मोदी भले पधारा ओ जाम कंडोड़ा मा वाला तमे आविया मोदी जी भले मारी डोणा भाई चाल भाई से आविया मोदी तमे भले पधारा मारी दिल થી એવી ઈચ્છા છે સાહેબ પધારી રહ્યા છે બધાનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે मंच पर विराजमान गुजरातना लोकप्रिय मृदु અને મક્કમ मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, 2019 ની ચૂંટણીમાં જેમણે આખા હિન્દુસ્તાનમાં રેકોર્ડ પ્રસ્થાપિત કર્યો, આખા દેશમાં સૌથી વધારે મતોથી જીતનાર ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ અને સુરત નવસારીના સાંસદ શ્રીમાન CR પાટીલ, અમારા આગેવાન ભાઈ શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, મંચ પર વિરાજમાન સંસદગણ, ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળના મિત્રો, ધારાસભ્યશ્રીઓ, જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયતના આગેવાનો, વિશાળ સંખ્યામાં પધારેલા મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, હું નથી માનતો કે જામ કંડોરણામાં આવું દ્રશ્ય પહેલા કોઈ વાર જોવા મળ્યું હોય. મેં આ છાપામાં વાંચ્યું કે હું પહેલો પ્રધાનમંત્રી છું જે જામ કંડોરણા આવ્યો છું. મારે વારે એવા કામ કરવાના આવે છે જે હું પહેલી વાર જ કરું છું. પહેલા કોઈએ કર્યા નથી. અને જ્યારે
આ ક્ષેત્રમાં આવું, આ ભૂમિ પર આવું, ત્યારે અમારા વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાની હાથ જરૂર આવે. ભાઈઓ બહેનો, આજે દેશના બે મહાન મહાપુરુષોની જયંતિ છે અને જેમણે ખાલી દેશની રાજનીતિ બદલી એવું નહીં, પણ દેશની યુવા પેઢીમાં એક નવો વિશ્વાસ પેદા કર્યો. નિરાશાની ગર્તમાંથી ડૂબેલી યુવા પેઢીને બહાર કાઢવા માટે ભગીરથ પ્રયાસ કર્યો હતો. આ બે એવા મહાન સપૂતો જેમણે આ દેશે ભારત રત્નથી સન્માનિત કરેલા છે. એક એટલે આપણા જયપ્રકાશ નારાયણજી અને બીજા નાનાજી દેશમુખ. આ બંને મહાપુરુષોની આજે જન્મ જયંતિ છે. આદરપૂર્વક એમને નમન કરીએ છીએ. અને જયપ્રકાશજી આઝાદીના આંદોલનથી લડતા રહ્યા, અલગ ચીલો ચાતરીને લડતા રહ્યા, પરંતુ આઝાદી પછી પણ વ્યવસ્થા બદલવા માટે એ આઝાદ ભારતની સરકારો સામે પણ લડતા રહ્યા. એ સમાજની માનસિકતા બદલવા માંગતા હતા, સરકારોની માનસિકતા બદલવા માંગતા હતા અને સશક્ત સમૃદ્ધ ભારત બને એના માટે ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ભારત માટે જી જાનની બાજી લગાવી દીધી હતી. ભાઈઓ બહેનો, એમના સાથી નાનાજી દેશમુખ, એમણે પણ એટલી સમર્પણ ભાવે આ રાષ્ટ્ર માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું. અને મારું એ સૌભાગ્ય છે કે સાર્વજનિક જીવનની હજી હું પાપા પગલી કરતો હતો એ વખતમાં મને જયપ્રકાશ નારાયણજીના ચરણ સ્પર્શ કરવાની તક મળી હતી અને અનેક વર્ષો સુધી નાનાજી દેશમુખ સાથે કામ કરવાનો મોકો મળ્યો હતો. એમના આદર્શ, એમના જીવન આજે પણ અમને બધાને પ્રેરણા આપે છે. ગરીબ હોય, આદિવાસી હોય, વંચિત હોય, ગામડાના લોકો હોય, એમના જીવનના વિકાસ માટે એમણે જિંદગી આહુત કરી હતી. અને જયપ્રકાશ નારાયણના પગલે ચાલવું એટલે લોઢાના ચણા ચાવવાનું કામ હોય છે ભાઈઓ, પણ અમે એ રસ્તો સ્વીકાર્યો છે. અમદાવાદ ગાંધીનગરની તેઓ વારંવાર મુલાકાત લેતા રહ્યા છે. SGVP ગુરુકુળ અમદાવાદમાં તેમણે ભાવાંજલિ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. ઉપરાંત વલસાડમાં આવાસ યોજનાના લાભાર્થીઓના કાર્યક્રમમાં અને વડોદરામાં સામાજિક અધિકારિકતા શિબિરમાં ભાગ લેવા તેઓ આવ્યા હતા. આમ નરેન્દ્ર મોદી પોતાના હોમ ગ્રાઉન્ડ ગુજરાતમાં વારંવાર આવે છે. હવે તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના ઢોલ વાગ્યા છે, ત્યારે રાજકોટ, સૌરાષ્ટ્ર આવતા નરેન્દ્ર મોદીને કહીએ સુસ્વાગતમ મોદીજી, સુસ્વાગતમ.